Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fourth module of the topic simplification, and in this module we are going to solve some moderate level questions from the topic simplification. As you know, this is a very important topic. So if you are preparing for any competitive exam और वो competitive exam में अगर एक subject है quantitative aptitude, then this channel, this module, these videos are for you. And simplification is a very important topic of quant because यही वो topic है जिससे आपकी calculation की speed improve होती है. Okay, so first let me share the screen with you. सो इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये पहले 3 वीडियोस देखना अच्छा रहेगा. दिस इज द फोर्थ वीडियो, दिस इज द फोर्थ मॉड्यूल. सो आई रिक्वेस्ट कि बिफोर यू गो थ्रू दिस मॉड्यूल it's better to watch the first 3 modules, okay, wherein we have covered the easy and moderate level questions. Let's start with the question. First question: 7.02 का स्क्वायर इंटू 360 रेज टू हाफ इंटू 31.98 का स्क्वायर माइनस माइनस समथिंग. नाउ यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन बिकॉज वी कैनॉट फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7.02. तो हम तो निकालेंगे 7 का स्क्वायर, करेक्ट, इंटू 360 रूट. This is square root of 360. We know that 360 is not a perfect square, but there is a number 361 which is a perfect square. 361 is a square of 19. So instead of 360, we have to write 361 into 31.98 का square means 32 का square divided by 7.99 का cube means 8 का cube minus 16.02 का square means 16 का square. So basically this is our question. Correct. Now 7 square 49. रूट ऑफ 361 इज 19. 32 का स्क्वायर बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं होती है, 32 इंटू 32 लिखना है. नेक्स्ट, 8 क्यूब इज 512 एंड 16 स्क्वायर इज 256. नाउ बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी कि 256 इज हाफ ऑफ 512. तो 512 तो डबल है 256 का. सो 512 माइनस 256 इज 256 ओनली. नाउ वंस अगेन वी शुड नो दैट 256 इज नथिंग बट 16 का स्क्वायर. सो 256 की जगह पे हम लिख देते 16 इंटू 16. 16 2s are 32. 16 2s are 32. So basically this is 49 into 19 into 4. Okay, now 49 into 19 into 4 options में देखोगे तो 9 into 9 81 and 81 into 4. So answer will end with 4. तो दो option है. So answer is either B or C. Because there are two answers ending with 4, so we need to find the answer. So what we'll do, this can be written as 49 into 19 4s are 76. So इसको हम क्या लिख देंगे? This can be written as 76 into 50 minus 76. 76 into 50 is nothing but 76 का half. 76 का half is 38. So this is 76 into 5 is 380. पीछे एक 0 minus 76. So answer is 3724. Option C is the करेक्ट आंसर. तो हमने हर जगह पे ट्रिक लगाना है. 49 इंटू 76 हमने कैसे किया? 49 इंटू 76 हमने ऐसे किया 76 इंटू 50 माइनस 76. बिकॉज 76 इंटू 50 करना इजी है. नेक्स्ट, 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 is equal to 50% of x and x% of 80. Perfect. Now here you can see that what is written 50% of x plus x% of 80. अच्छा, x% of 80 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 80% of x. x% of 80 can be written as 80% of x. Why? You can check in the previous module. So basically this is 50% of x plus 80% of x. 50% of x plus 80% of x मिला के हो जाता है 130% of x. So basically our right hand side is 130% of x. Now 40% of 265. This is equal to 130% of x. Correct. इसका हाफ करेंगे 5, इसका हाफ करोगे 2, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3. करेक्ट.
9 5 से डिवाइड करोगे 7. So basically this is 2 into 53. 53 2s are 106 plus 63 is equal to 13 by 10x, correct? So 106 plus 63 is 169. So 169 is equal to 13x by 10. So x is equal to 169 into 10 divided by 13. We know that कि 13 का square is 169. So answer is option C, 130. करेक्ट. तो हमने यहाँ पर ये ट्रिक लगाया कि x% of 80 can be written as 80% of x. थोड़ा कैलकुलेशन इजी. नेक्स्ट. 28.12% of 7800 divided by 3.01 plus 1.01 is x cube. Now x cube मतलब आपको बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है. 5 का क्यूब होगा तो ये आंसर 125 होगा, 216. सो यू कैन सी दैट ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज, क्योंकि 5 का क्यूब अगर फर्स्ट ऑप्शन ले तो आंसर बनता है 125. दिस इज 216, दिस इज 512, दिस इज 343 एंड दिस इज 729. ऑप्शंस वेरी फार. तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं. ठीक है. सो 28.12% को हम लिख देते हैं 28%. परसेंटेज को 2 जीरो से काट दिया. सो बेसिकली दिस इज 28 into 78 divided by 3 plus 1 is equal to x cube, 26. Now 28 into 26 कैसे करोगे? How to do 28 into 26? इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जब भी इन दोनों के बीच का नंबर है 27, 28 एंड 26 के बीच में 27 आता है, तो वी विल डू इज दिस 27 का स्क्वायर माइनस 28 और 27 में 1 का गैप है, 26 और 27 में भी 1 का गैप है, तो माइनस 1 का स्क्वायर. दिस इज अ ट्रिक है, इसको याद रख लेना है. ये बेसिकली हमने ऐसे किया है. दिस इज नथिंग बट 28 कैन बी रिटर्न एज 27 plus 1 and 26 can be written as 27 minus 1. 27 plus 1 into 27 minus 1 can be written as 27 square minus 1 square. ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए. इसके लिए आप मेरे स्पीड मैथ वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं जहां पर ये सारी ट्रिक्स बताई है. ओके. सो दिस इज नथिंग बट 27 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो बेसिकली एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर होता है 729 and answer is x is equal to 9. Option E is the correct answer. यहां पर हमने क्या सीखा? यहां हमने ये सीखा 28 into 26 करने का सबसे बेहतरीन तरीका. Now 675 into 675 into 675 plus 325 into 325 67.5 32.5. तो आप यहां पर देख सकते हो कि मुझे मोटा मोटा दो नंबर दिख रहे हैं. एक ये 675 वाले टाइप के नंबर एंड सेकंड इज 325 टाइप्स के नंबर. सो I can do this. This number I can assume as A and this number I can assume as B. So let A is equal to 67.5 and B is equal to 32.5. But यहाँ पर 67.5 नहीं है, यहाँ पर 675 है. So from this I can say कि 10A is equal to 675 and from this I can say कि 10B is equal to 325. Now बड़े बड़े नंबर देख के बिल्कुल डरना नहीं है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है. 675 की जगह पे हम लिख देते हैं 10a. तो दिस इज 675 इंटू 675 इंटू 675. सो बेसिकली दिस इज 10a का होल क्यूब प्लस 325 इंटू 325 इंटू 325 इज नथिंग बट 10b का होल क्यूब. 67.5 को हमने a अज्यूम किया था, सो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. करेक्ट. इसको देख के तुरंत चमकना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है. सो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है. ओके. नाउ 10a का होल क्यूब कैन बी रिटर्न एज 1000 a क्यूब. 10 का क्यूब इज 1000. सिमिलरली 10b का होल क्यूब कैन बी रिटर्न एज 1000 b क्यूब अपॉन. नाउ 1000 इफ यू टेक आउट तो अंदर बचता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे आप ये लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू
ये और ये कैंसल, अपना आ गया आंसर। तो आंसर इज 1000 इंटू ए प्लस बी, बट हाँ ए प्लस बी की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी। ए इज 67.5, बी इज 32.5, सो आंसर इज 1000 इंटू, आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 100 हो रही है, सो 100, सो 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, टोटल 5 zeros, 5 zeros आर देयर इन ऑप्शन बी, करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन बी। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, करेक्ट, दिस फॉर्मूला वी यूज्ड। नेक्स्ट, नाउ once again this is a question of approximation, 2222.1 को हम लिख देंगे 2222, 2222। Okay, so this is how we can write. Now here you can see that there are four terms, 1, 2, 3 and 4, and in all these four terms 11 is common, तो 11 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 2222 प्लस 3333, करेक्ट, ऐसा हो रहा है। नाउ यू कैन सी दैट 2222 प्लस 3333 माइनस 5555 सब जीरो हो जाएगा, सो बेसिकली आंसर इज 11 इंटू 4444। नाउ वंस अगेन, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 देयर इज अ ट्रिक। ये ट्रिक मैंने डिटेल में बताई है वंस अगेन मेरे स्पीड मैथ के लेक्चर में। तो कुछ भी करने से पहले, क्वांट में कुछ भी करने से पहले आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, एंड दैट इज स्पीड मैथ्स। मैथ्स के कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं आते हैं तो दिस चैप्टर में यू कैन हैव अ प्रॉब्लम। Okay, now how to multiply any number by 11? The trick is this. Now you can see that the first number is 4 and the last number is 4. तो वो first number last number लिख देना होता है। फिर last से दो दो नंबर को ऐड करते जाओ। 4 plus 4, 8. 4 plus 4, 8. 4 plus 4, 8. So this is the answer. Option C is the correct answer. Next. 24% of 150. 24% ऑफ 150 को वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 150% ऑफ 24, एंड आपको पता होना चाहिए कि 150% ऑफ 24 कितना होता है। सो 150% मतलब जितना है उसमें और आधा ऐड कर दो, सो 24 में आधा ऐड कर दोगे तो 12, सो दैट इज 36। सो 36 प्लस 4/9 इंटू 270, ये है क्वेश्चन, करेक्ट। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा और ये ऑफ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल वर्क ऑन ऑफ, सो दिस इज 30। 45/9 can be written as 5. Okay, so 36 plus 120 is 156. 156 minus 55. 101 is the correct answer. Very simple question. Next. 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको बेसिकली। 1225 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 343 into 45% of 760. 45% of 760 कैसे लिखोगे? This is how we will write 45% of 760. Now 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर कोई भी नंबर 25 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट तो 5 से एंड करता है। इनफैक्ट अगर आपको ये ट्रिक पता है, फॉर एन एग्जांपल इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25, तो स्क्वायर ऑफ 25 क्या होता है। नाउ 5 का स्क्वायर इज 25, सो यू हाउ टू राइट हियर 25, एंड 2 के बाद का नेक्स्ट नंबर इज 3, so 2 into 3 is 6, so 625. Similarly, if someone asks you what is 35 का स्क्वायर तो क्या करोगे, एंड में तो 25 लिखना है, दैट इज फिक्स। 3 के बाद का नेक्स्ट नंबर इज 4, सो 1225। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो इसमें हमें उल्टा जाना है, यहाँ से हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर रूट है, तो 25 की जगह पे हमने 5 लिख दिया, एंड 12 कैन बी रिटर्न एज 3 into 4, सो हमें छोटा वाला नंबर लेना होता है, दैट इज 3। 343 का क्यूब वी ऑल नो इट इज 7। 5 से डिवाइड करेंगे 9, हाफ करेंगे 38, so basically this is 38 into 9. 27 plus 7, 34.
वेट वेट, कुछ गड़बड़। 1225 is nothing but it is a square root 35, 35 ऐसे ना, करेक्ट है 342। नाउ 342 इंटू 5, वंस अगेन इसको करने के लिए क्या करोगे, कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 342 का हाफ, 342 का हाफ इज 171, पीछे एक जीरो लगा दो, so 1710 is the answer। नेक्स्ट, डैश का स्क्वायर रूट, रेज टू हाफ का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 3025 का स्क्वायर रूट, 3025 का स्क्वायर रूट क्या होता है। नाउ दिस इज 25, सो दिस हैज टू बी 5। 30 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 6, छोटा नंबर लेना होता है, सो 55। इट मीन्स कि 55 का स्क्वायर होता है 3025, so into 55 is equal to 2695। ठीक है, चलिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे 11, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 539। ठीक है, चलिए 4 डिवाइड करते हैं 11 से, सो दिस इज 449। नाउ इट मीन्स कि रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 49, सो एक्स इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर वंस अगेन निकालने के लिए स्पीड मैथ्स का ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक नहीं पता है वो वापस वो वीडियो देख ले, स्पीड मैथ्स वाले वीडियोस। ओके, सो 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर कैसे निकालते देखिए, इसके लिए हमें 50 वाला ट्रिक लगाना होता है ना। 49 इज लेस देन 55 बाई -1, इस वाले ट्रिक में एक फिक्स नंबर 25 लेना होता है, सो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 एंड देन 1 का स्क्वायर इज 01, सो 49 का स्क्वायर इज 2401। डिटेल में जानना है कि ये स्क्वायर कैसे निकलता है तो उसके लिए वीडियो देखें। स्क्वायर निकालने के बहुत सारे ट्रिक्स है, ये पता होने चाहिए। स्क्वायर के ट्रिक्स से आप 1 टू 130 तक के कोई भी नंबर का स्क्वायर ओरली निकाल सकते हो, अगर आपको ट्रिक पता है तो, जैसे हमने यहां पर निकाला है। नेक्स्ट, 1819.98 को क्या लिखेंगे, 1820 लिख देते हैं। 454.89 को लिख देते हैं 455, प्लस 441 का स्क्वायर रूट, 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट्स स्क्वायर ऑफ 21, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 5475.82। नाउ ये किसका स्क्वायर होगा, दिस नंबर इज 5476। 5476 किसका स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है ये किसी का भी एग्जैक्ट स्क्वायर ना हो, कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो, पॉसिबल है, बिकॉज ऑप्शंस में हमें एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 11 डालते हैं तो आंसर शुड बी 121, 13 के लिए 169, 17 के लिए 289, 7 के लिए 49, 15 के लिए 225, सो ऑप्शंस इतने पास नहीं है। एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू काफी दूर दूर है, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। नाउ 5476 किसका, अगर हो सकता है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्ट ना हो, आजू बाजू वाले कोई और नंबर हो, बट हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। सो व्हाट वी विल डू हियर इज, ये देखिए 54 लाइज बिटवीन 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। 54 लाइज बिटवीन 49 एंड 64, इट मीन्स कि 5476 का स्क्वायर रूट इज गोइंग टू लाई समवेयर बिटवीन 70 एंड 80, करेक्ट। 5476 का स्क्वायर रूट समवेयर इज गोइंग टू लाई बिटवीन समवेयर बिटवीन 70 एंड 80। अच्छा, तो हमें 75 का स्क्वायर निकालने तो आता है, 75 का स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू 8 इज 56, पीछे 25, इट मीन्स कि 75 का स्क्वायर इज 5625, ये थोड़ा इससे कम है, तो क्यों ना इसको 74 का स्क्वायर बना दे, सो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 74। हो सकता है 74 के आसपास हो, थोड़ी बहुत एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, तो दिस इज 74। ओके, अभी देखिए 4 एंड 18, 4
4,016 होता है, तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Yes, 1820. It means कि 455 into 4 is 1820. So this is 4. 441 का स्क्वायर रूट इज 21 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 74. So x square is equal to 74 minus 25. 14 minus 5, 9, 6 minus 2, 4. So x square is equal to 49. So x is equal to 7. एग्जैक्ट आंसर आ गया 7. चलिए, अगर आपका आंसर 49 की जगह पे सपोज 48 आ रहा है या 51 आ रहा है, तो भी आप 7 पे टिक करो, क्योंकि ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी. 8 by 9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. 27 by 32. नाउ 15% ऑफ 12, परसेंटेज को 2 जीरो से काट दो, सो 15 इंटू 12. इसको सॉल्व करना है. 15 15 कैंसल, सो बच गया 3 इंटू 2 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 72. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, नहीं आता है तो क्या करोगे? वही स्पीड मैथ्स वाले मेरे वीडियोस देख सकते हो, जहां पर ये सारी चीजें बताई गई है. 9 3/4, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन. इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है. सो दिस इज बेसिकली 39/4. करेक्ट. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये सारे के सारे फ्रैक्शन को वी विल कन्वर्ट इट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 1/3 कैन बी रिटर्न एज 13/3. 2 1/2 can be written as 5/2 plus 3/4. Correct. So this is our question. Now the innermost bracket is this. This is the innermost bracket. So we need to work on this. So 5/2 plus 3/4 कितना होता है? इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई. So this also will multiply by 2. So basically this is 13/4. करेक्ट. सो इसकी वैल्यू आ गई है 13/4. नाउ नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें इस कर्ली ब्रैकेट पे काम करना है, इस वाले ब्रैकेट पे, इस ब्रैकेट पे काम करना है. So this is nothing but 13/3 minus 13/4. 13/3 minus 13/4, 13 कॉमन ले लेते हैं. So this is 1/3 minus 1/4. So that is equal to 4 minus 3 is 1. So that is equal to 13/12. So end में हमारा क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, 39/4 divided by 13/6 plus 13/12. करेक्ट. Now 6 को 12 बनाने के लिए into 2, this also is into 2. So this is 39/4 divided by 39/12. So this is equal to 39/4. Answer is 3. Option B is the correct answer. Perfect. चलिए, इसमें A दिया, A गलत है. Option B is the correct answer. Next. Wow, what a question. इस क्वेश्चन में 1 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है. So looks very simple, but no. एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है. Okay, now here you can see that there are multiple brackets: box bracket, curly bracket, round bracket. First we'll start with the innermost bracket, that is a round bracket. We have to be very very careful with this type of question. First इसकी इस पर solve करना है. Correct. Now this is plus and divide. First we need to do is divide. So 1 divided by 1 is 1. So 1 plus 1 is equal to 2. It means the value of this round bracket is 2. Next we need to work on this curly bracket. Correct. तो इसके लिए क्या लिखा है देखिए, 1 plus 1 divided by 2. It is like this. So first we have to do is 1 divided by 2. So 1 plus 1 divided by 2. This is nothing but 3/2. It means that the value of this curly bracket is 3/2.
तो एंड में हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा। करेक्ट, बस इतना, इसको सॉल्व करना है। नाउ 1 divided by 3 by 2 can be written as 1 into 2 by 3, so that is equal to 2 by 3, और उसमें फिर प्लस 1 करना है, so 2 by 3 plus 1, that is equal to 5 by 3. It means कि value of this box bracket is 5 by 3, so 1 divided by 5 by 3, that is equal to 1 into 3 by 5, so answer is 3 by 5. जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तभी लग नहीं रहा था कि ये क्वेश्चन क्या फ्रैक्शन में जा सकता है, बट यस, ये फ्रैक्शन में गया इसका आंसर। ठीक है, सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट, 5 by 7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 1 6 by 13, इसको लिख सकते हैं 19 by 13, दिस इज वन ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 2 5 by 7 can be written as 19 by 7, and similarly 3 1 by 4 can be written as 13 by 4. परफेक्ट, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज वन ब्रैकेट, नाउ दिस डिवीजन का करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड 4 by 13. परफेक्ट, सो एंड में द सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, 5 by 7 into 19 by 13. नाउ दिस डिवीजन है तो अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल, सो इसका रेसिप्रोकल होगा 7 by 19, एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13 by 4. बस सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर, सो आंसर एंड में इज 5 by 4. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ऑप्शन सी 5 by 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि सिर्फ इसका रेसिप्रोकल नहीं करना है, इस वाले का भी रेसिप्रोकल करना जरूरी है। ऑप्शंस देखो, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शंस इतने पास पास नहीं है, 10 का यहाँ पर 10 का गैप है बस। ओके, नाउ लेट्स 79.82% कैन बी रिटन एज 80% ऑफ 1349.82 can be written as 1350, plus 38.12% can be written as 38 only, and 449 को आप लिख सकते हो 450 minus 281. So basically we have to solve this. Now 80% of 1350 परसेंटेज को 2 0 से काट दो, तो this is 135 into 8, प्लस इसको 5 से डिवाइड करेंगे 9, इसका हाफ करेंगे 19, करेक्ट, सो 19 9s are 171, 135 into 8 कितना हो जाएगा, so this is 1080 plus 171 minus 281 कितना होता है, ये 110 हो जाएगा, minus 110 minus 110, 80 में से 10 गया तो 70, 10 में से 1 गया तो 9, ऑप्शन इज ए 970। ऐसे ही वीडियो की बार 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 प्रैक्टिस करने से आपको स्क्वायर्स याद रहते हैं, क्यूब्स निकालने याद रहते हैं, टेबल्स याद रहते हैं, और बहुत जल्दी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिलेशन करना याद रहता है। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट chapter we will, that is the next module, that is the 5th module, in that we will not solve some moderate level question, we will solve some tricky level questions. ठीक है, so till then keep on practicing math। और अगर आपको लग रहा है कि क्वांट की इस जर्नी में इस वीडियो की वजह से आपको थोड़ी मदद मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहे, बिकॉज मैथ इज इजी। थैंक यू।